Hello everyone, welcome to my channel IGNOU MSc Zoology. In today's video, we will be discussing this subject of parasitology MZO001. This is in your first semester of MSc Zoology IGNOU program. And in this video, we will be discussing Unit 3rd. I had already explained one topic of this unit, hypersensitivity, and its type in my previous video of this series. In this video, I will be sharing a new topic of what is immunity in this video. And if you like the video, like, share it, and subscribe the channel to get more such interactive videos which will be going to help you in your preparation for your exams. So let's start. What is immunity? वन मोर थिंग, ये जो नोट्स हैं, ये जो कंटेंट है, ये सारा ये मैंने आपका जो इग्नू का मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी उसी से लिया हुआ है। कोई न्यू सोर्स, कोई न्यू वो चीज़ नहीं है। उसी को रिफाइन करके उसी के शॉर्ट नोट्स बनाकर मैंने ये सारा कंटेंट बनाया है। तो आप अपनी बुक्स में भी इसको मार्क करके इजीली रीड और रिवाइज कर सकते हैं टू better memorize it. So now to start this topic. What is immunity? Immunity refers to a way of protecting the body against an infectious diseases by our immune system. तो जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी against infectious diseases is immunity. It is a way of protecting ourselves from infections. Immune system is made up of two categories. बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है. यू हैव ऑलरेडी रीड दिस इन योर अर्लियर क्लासेस. innate immunity and adaptive. Innate means inborn, non-specific. That means when the child is born, the innate kind of immunity is already present in the body, which is non-specific. That means this immunity doesn't work specifically for some specific disease. It is non-specific, it works for all. And second is adaptive, acquired, and highly specific. This is adaptive, acquired. That means while you interact with some kind of pathogen, then your body develops this immunity. So the name is acquired. एंड ये हाईली स्पेसिफिक होती है जब कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी में, उसी टाइम पर ये काइंड की जो इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी में डेवलप होगी. Immunological protection against parasite infections is less efficient than it is against another infectious agents like viruses and bacteria. तो जो ये इम्यूनिटी होती है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस is less efficient than it is against another infectious agents. तो parasitic infections में less efficient होती है as compared to the bacteria and viruses. The parasites have developed certain mechanism to evade. Why this is so less efficient क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ mechanism ऐसे develop हो जाते हैं जिससे वो क्या कर देते हैं, evade कर देते हैं हमारी immune responses को and survives in our body and multiply within the body of host. Parasites are antigenically more complex because of their large sizes. One more reason is parasitic जो क्या होते हैं वो more complex होते हैं. उनकी body basically complex होती है बहुत ज़्यादा और उनका जो size होता है वो भी बहुत large होता है. We will discuss the life cycle of each pathogen in our coming videos. जो कि उनमें से एक वीडियो आपके एग्जाम में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो उन वीडियोस को सीरियसली लीजिएगा और प्रिपेयर करके जाइएगा. एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा उस टॉपिक से. So let's move further. This diagram is given in your book. You can easily revise easily from it what you have read so far. इनेट इम्यूनिटी के कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन के अंदर हमारी कौन सी इम्यूनिटी होती है, इनेट. एंड डफी नेगेटिव जीन्स एग्जिबिट रेजिस्टेंस टू मलेरिया. और काइडेरिया सिस्ट में भी ये वाला हमें इम्यूनिटी देखने को मिलती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफिक भी हो सकती है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है, जो उन्होंने दिया हुआ है ये. लेकिन हम बात कर रहे हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन की, बैक्टीरिया एंड वायरसेस की बात नहीं कर रहे हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक में हमारी एंटीबॉडी जो मीडिएटेड होते हैं बेसिकली, जिनमें हमारी एंटीबॉडीज इंक्लूड होती है, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक. इसमें हमारी कुछ एंटीबॉडीज हैं जो स्पेसिफिकली इस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि IgM, IgG एंड IgE. IgE काफ़ी सीवियरली जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होती है.
इसी तरह से हमारी स्पेसिफिक में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। इसमें हमारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिक नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मैक्रोफेजिक मतलब न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, वो वाली सेल्स जो है हमारी इसमें इन्वॉल्व होंगी। साइटोटॉक्सिक सेल्स जैसे टी सेल्स हैं जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं टू मेक एंटीबॉडीज एंड ट्रिगर द इम्यून रिएक्शन। कुछ हमारे जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी हमारी बॉडी में देखी जाती है। नेक्स्ट, नॉन स्पेसिफिक की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन एंड इंजेक्शन ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम पार्वम भी हमारा इसमें नॉन स्पेसिफिक में आता है। सो ये एक जर्नल एक डायग्राम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एग्जाम्पल्स ब्रीफली अपने माइंड में रख सकते हो, जैसे ये वाले एग्जाम्पल्स और कुछ ये वाले, जैसे आप अगर एग्जाम में आंसर्स लिखो तो उसमें कोट कर सको। नेक्स्ट, adaptive immune system includes both humoral and सेल mediated। बेसिकली जो हमारी सेल्स होती है humoral एंड सेल्स के थ्रू ये वाली इम्यूनिटी वर्क करती है, adaptive immunity which are acquired by an individual of a foreign agent in the body. So let's move further. Humoral immunity क्या होती है? Antibodies react with the antigen to immobilize and destroy it. This type of immunity is called humoral immunity and is highly specific because of antigen antibody interaction. ये वाली जो इम्यूनिटी होती है हाईली स्पेसिफिक होती है हमारी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। तो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी हमारी बॉडी में क्या होगी, सिक्रीट होगी, इसलिए क्या होती है हाईली स्पेसिफिक। नेक्स्ट, humoral responses involves antibodies which are produced in the response to the parasitic antigens such as glycoprotein, glycolipids, proteins, and carbohydrates. IgM is the first immunoglobulin to appear in an infected organism, followed by IgG and IgA. So IgM जो होती है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो सबसे पहले जो है आईजी एम वाली जो एंटीबॉडी है उसका नंबर हमारी बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन। इंट्रासेलुलर मीन्स जो भी हमारी बॉडी के आउटसाइड एक्टिवेशन हो रहा है एंटीबॉडीज का, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर इन्फेक्शंस। रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स 1, which in turn initiates cell mediated immunity mediated by activation of antigen presenting cells by cytotoxic T cells। तो इंट्रासेलुलर में हमारी जो है टी हेल्पर सेल 1 इन्वॉल्व होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर में टी हेल्पर सेल 2 इन्वॉल्व होती है। यही हमारा बेसिक डिफरेंस था जो हमें माइंड में रखना है। अगर ये दोनों जो है हमें डिफरेंस की फॉर्म में आ जाए, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शंस एंड इंट्रासेलुलर इन्फेक्शंस, so we have to keep this in mind to write the। सो आर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट टाइप की इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। इनमें कोई भी हमारी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं, रैदर इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड रिलीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ साइटोकाइंस। Cellular immunity is attained by phagocytosis, encapsulation, melanization and नेक्राइजेशन। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। इनको वन बाय वन डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं कि क्या होता है हर एक प्रोसेस में, बिकॉज आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगी इन 5 मार्क का क्वेश्चन। Phagocytosis, it is a process by which a phagocyte surround and destroy the foreign substance, monocyte, macrophages and neutrophils। द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस अकर्स इन 3 स्टेप। ये क्या होता है, ये हमारा 3 स्टेप में होगा। और जो फेगोसाइट होगा वो क्या करता है, सराउंड कर लेता है अपने आप को फॉरेन सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फॉरेन सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा अपने आप को इसके सराउंडिंग अपने आप को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। ये 3 प्रोसेस में होगा। कीमोटैक्सिस, दैट मीन्स attraction of phagocyte to the foreign material, binding of foreign material on the surface of phagocytes, engulfment और internalization of foreign substance by the phagocyte। तो 3 प्रोसेस होंगे इसमें। पहला attraction होगा to the foreign material, next binding and third is engulfment। फाइनली फाइगोसाइट हो जाएगा। एनकैप्सुलेशन जो होगा वो बस
होगा सेम ही, बट इसमें एक छोटा डिफरेंस है, ये उसमें होता है जो पैरासाइट हमारे क्या होता है साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे, जो कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं। उन फॉरेन सब्सटेंस में हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का जो नंबर है वो बॉडी में इंक्रीज होगा, उस प्रोसेस को ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। एंड माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट टुवर्ड पैरासाइट and formation of a capsule. For example, it is seen in the insects and molluscan hosts. तो ये हमारा इंसेक्ट्स में और मोलस्कन होस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है मेलेनाइजेशन। मेलेनाइजेशन में क्या होता है, डिपोजिशन होता है एक ब्राउन ब्लैक पिगमेंट का अराउंड द फॉरेन सब्सटेंस, जो हमारा क्या करेगा, उसकी जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मोल्टिंग, हैचिंग, फीडिंग, उनको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और अल्टीमेटली जो पैरासाइट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमारा ये होता है मेलेनाइजेशन की प्रोसेस में केमिकल होगा, वो अपने आप को डिपॉजिट करेगा फॉरेन सब्सटेंस के आसपास और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इट इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीफिनोल बाय टायरोसाइनेज। तो इसमें क्या होगा, एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है, किस केमिकल की होगी, पॉलीफिनोल की। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है प्रिपेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेलेनाइजेशन ऑफ नेमेटोड इन हेमोसील ऑफ लार्वा हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्रेजेशन। नेक्रेजेशन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म सीन इन मोलस्क। ये हमारा जो है मोलस्क में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल Myocynocephalus minutus, a trematode, occurs between the nacreous layer surface of the cell, the mantle of marine bivalves। तो ये हमारा बेसिकली जो भी हमारा हम्प, जो मेंटल हम्प एंड काइंड ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं मोलस्क्स में, उनमें देखने को मिलता है। Mantle is stimulated because of this helminth parasite and secretes nacre that becomes deposited around the parasite. During this process, a pull is formed and enclosed parasite is killed. Because of this, necrization is called pull formation। इसी की वजह से जो नेक्राइजेशन क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्ल फॉर्मेशन भी हमारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। वो कुछ नहीं है, जब वो उसको एक्टिविटी के मतलब इस एक्टिविटी में जब वो उसको किल कर रहा होता है, उस एक्टिविटी के थ्रू हमारा क्या होता है, एक पर्ल बनता है, उसी को हम पर्ल फॉर्मेशन इधर बोल रहे हैं, जो कि नेक्राइजेशन में इन्वॉल्व होता है। सो ये थी हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की रिस्पॉन्सेज, 4 रिस्पॉन्सेज थे जो हमने पढ़े हैं। यही था हमारा इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वाले सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट then please tap to the like button, share it, and please subscribe to my channel so that I can bring more such interactive videos for your exams regularly. Thank you.